It's my privilege to welcome Pastor Ajay Matthews, a wonderful man of God. He's from New Delhi. He's also one of our peer mentors. And, we need to have a fellowship of peers. We have Pastor Rick Coburn, who is our overseeing pastor, and he will be sharing the word also in a couple of Sundays. And it's good to have pastors who are also, not just visiting preachers, but also people who have an input in our lives. Pastor Ajay Matthews also has input in our ministry in India, and he's been a very frequent pastor who comes there, ministers in our times of fellowship. We were wanting to put up some pictures, but I think we've skipped that. But the Lord has richly blessed him, and he is a pastor of many pastors. I've spent some time in Delhi with him. I've been with him and stayed with him, and also ministered in many of his churches. One of the things that I found that he's a pastor that I would think would be like an exemplary pastor. And I learned a lot of things just being with him. And a lot of his people, I spent time with him and asked them, so what is it that has blessed you? Why are you part of Kingsway ABC Church in Delhi? And some of the people, as they've shared, they said, आज तो हम चल रहे हैं, पर एक दिन पास्टर साहब ने हमारी उंगली पकड़कर हमें एक एक कदम भी रखना सिखाया. सिर्फ कलाम की बातों में ही नहीं, पर ज़िंदगी के हर मोड़ में हमारी मदद की, हमें गाइड किया. और आज अगर हमारा ख़ानदान मसीह में खड़ा है तो उनकी खिदमत का ये असर है. So that was wonderful to hear, not only from one person, but many people, different age groups. He has a lot of young people that are with him, older people. And he has planted many churches that are not with him also. And he has a morning service, couple of hundred people are there, maybe 300-400 people. But then they have, throughout the city, they have like about over a dozen churches that meet in different areas. And each of those places have like 100-200 people. And those are ministries in different areas that are growing. So the morning is like an impartation service where the leaders come and they are blessed. And then in the evening, the congregations meet in different areas. A very interesting model. And it was a great blessing to be with him. He has been a mentor pastor for our churches, our leaders. And he is also one of the pastors who is available should there be any challenges that our churches face. That with Pastor Thakur's death and Pastor Simon's death, we have senior leadership that is really not there now. And Pastor Ajay Matthews has really graciously come and filled in that space, and our people look up to him. And it is my privilege that I can welcome him. This time when he came to Nagpur, he came with his wonderful wife, and what a blessing it was for us to experience both of them. His son, Akshay Matthews, is a lead gospel singer, has many albums, and his older son, Gary, is also serving with him. And we are very, very honored to know this man of God and his family and his ministry. On behalf of all of you, I want to give him a warm Calvary, Texas welcome. Would you welcome him? Welcome, Pastor. God bless you. प्रेज द लॉर्ड. पास्टर जी इतनी हाईली बातें बोल देते हैं मेरे बारे में, तो कई दफ़ा बड़ा लगता है कि कैसे मैनेज करूँगा.
पर मैं खुदा का वो खादिम हूँ जो उसको खुदा ने 19 साल की उम्र में चुना था, और उसकी खिदमत करते करते आज 58 साल हो गए हैं मेरी उम्र में। और इन सब सालों में खुदा ने बड़े हाथ को दिखाया है। मैं कोई गवाही अपनी तारीफ में तो नहीं कह सकता, पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि खुदा ने अपने बड़े हाथ से अपनी कलीसिया को तामीर किया है और खुदा कलीसिया को बढ़ा रहा है। हम जो खादिम लोग होते हैं, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास करना पड़ता है कि हमारी ज़िम्मेवारी पे बहुत सी खिदमत होती है, बहुत से लोग होते हैं जो फॉलो करते हैं, और हमें सबसे ज़्यादा टारगेटेड लाइफ हमारी ही होती है। इसलिए मैन ऑफ गॉड इज़ नॉट अ जोक। ये कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि सारा हेल जो है आपके ख़िलाफ़ लगा होता है कि आपको किसी तरीके से डिस्ट्रॉय करे, क्योंकि लिखा है मैं चरवाहे को मारूंगा और भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। भेड़ों को शैतान अटैक नहीं करता, अटैक करता है खादिमों पर। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ कलीसियाओं के लिए जिन्होंने खादिमों के लिए दुआएं करी हैं। आप लोग भी दुआ करते हैं, और आपके पास इतना वंडरफुल मैन ऑफ गॉड खुदा ने दिया है, और आपकी ज़िम्मेवारी है कि आप उनके लिए दुआएं करें ताकि खुदावंद उनको मजबूत रखे। और बहुत से काम अभी बाकी हैं, कि तो ईमान रखते हैं बहुत काम बाकी है अभी। इट्स नॉट येट डन, ख़त्म नहीं हुआ अभी बहुत कुछ बाकी है। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदा के खादिम ने मुझे भी कैलवरी चर्चेज़ जो कि नागपुर में हैं उसमें मुझे अपनी खिदमत में जोड़ा, ताकि मैं उनकी खुद सेवा कर सकूँ, थोड़ा बहुत योगदान दे सकूँ। इसलिए मैं शुक्रगुज़ार हूँ खुदा के खादिम के लिए भी जिन्होंने इस चीज़ को महसूस किया। और आज मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में वापस आकर खुदा उनकी खिदमत करने का मौका है। आर यू एक्साइटेड? सब लोग खुश हैं आज? तो कितने तैयार हैं खुदा के कलाम को सुनने के लिए? प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, जब आप एक्सपेक्टेशन के साथ आते हैं, व्हेन यू कम इनटू हिज प्रेजेंस विद एक्सपेक्टेशन, गॉड ऑलवेज मीट योर नीड्स। व्हेन यू कम जस्ट रूटीन में हमें जाना है, संडे जाना होता है, चले जाते हैं, चलो जाके बैठ जाएंगे, कोई बात नहीं, वो एक एक्सपेक्टेशन नहीं है, वो एक पार्टिसिपेशन भी नहीं है, वो एक जस्ट एक आना हुआ सिर्फ। पर खुदा चाहता है हम जब भी उसके पास आएँ तो वी शुड एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम द लॉर्ड, कि आज खुदा मुझसे बात करेगा। आज गीत के वसीले से, किसी गवाही के वसीले से, किसी शख्स के वसीले से, कि खुदा के एक कलाम के वसीले से खुदा बात करेगा। और खूबसूरत बात पता क्या है कि आज अगर खुदा बात कर रहा है तो यू आर इन ए वेरी गुड पोजीशन कि खुदा बात कर रहा है, क्योंकि ऐसा वक्त आ गया कि खुदा लोगों से बात करना बंद कर देगा। ऐसे कई दफ़ा मोमेंट आते हैं जहाँ पर लाइफ में इंसान को लगता है कि गॉड इज़ नॉट टॉकिंग टू मी एनी मोर बिकॉज वी हैव डन समथिंग अगेंस्ट हिम। और खुदा चाहता है जब हमसे खुदा बात करे तो ये बहुत ही प्रिविलेज की बात है। सो आज का जो टॉपिक है खुदा के कलाम से, आज मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूँ जो खुदा से जुड़ कर रहना चाहते हैं। मैं ये कलाम उनके लिए नहीं है जो खुदा के साथ विजिट करते हैं। दिस वर्ड ऑफ गॉड इज़ ओनली फॉर दोज पीपल दोज हु वांट टू गो क्लोजर टू गॉड, खुदा के करीब जाना चाहते हैं, जिनको खुदा की अहमियत पता है, जिनको खुदा के साथ रहना और खुदा की शख्सियत क्या है और क्या वो रिक्वायर करता है, क्या डिमांड करता है, उसको जो उनको इल्म है इस बात का, ये कलाम उनको समझ में आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो आज का जो मैसेज है वो है व्हाट इज़ योर ड्वेलिंग प्लेस। अगर दूसरे शब्दों में कहें, व्हाट डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, आपका पता क्या है, आपका एड्रेस क्या है। ये एक सवाल के साथ का एक मैसेज है। और आज हमारा एड्रेस हमें पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जहाँ रहते हैं वहीं पे किसी को इनवाइट कर सकते हैं। जहाँ आप रहते हैं वहीं का एड्रेस देंगे कि आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। आज इस कलाम को शुरू करने से पहले कुछ स्टेटमेंट में देना चाहूँगा, क्योंकि आज बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि वो रहते कहाँ हैं। दे डोंट नो। और अक्सर लोग
यूं कहते हुए दिखाई देते हैं, अबे कहाँ रहते हो, दिखाई नहीं देते, कहाँ रहते हो। तो कई लोग तो गुस्से में रहते हैं, है ना, किनको कई ऐसे लोग होती, पर्सनैलिटी होती है जिनसे आप बात करने से डरते हैं क्योंकि वो रहते हैं गुस्से में। सो बहुत मुश्किल होता है ऐसे लोगों से में डील करना, बिकॉज दे लिव इन एंगर, गुस्से में रहते हैं। और कई लोग तो घमंड में रहते हैं, जरा सी तरक्की हो जाए तो यहाँ पहुँच जाते हैं ऊपर। तो घमंड में भी कई लोग रहते हैं, और कई लोग तैश में रहते हैं बहुत। कई ऐसे वर्ड मैं बोल रहा हूँ जो आपको यू कैन समझ सकते हैं आप किसके साथ में बात कर रहा हूँ। कई लोग गुनाह में रहते हैं, उनको पता है कि हम रहते गुनाह में हैं। कई लोग मज़े में रहते हैं, दुनिया चाहे भाड़ में, उनको कोई मतलब नहीं, वो तो मज़े में रहेंगे, उनके अंदर फीलिंग्स नहीं होती है, दे जस्ट वांट फन। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ फ़न को इतना महत्व दे दिया है, इतना ज़्यादा मौका दे दिया कि वो उसी में रहते, मज़े में रहते। कई ऐसे लोग हैं जो बेचारे डिप्रेशन में रहते हैं, उनका एड्रेस है डिप्रेशन। इफ यू वांट टू मीट मी, कम इनटू डिप्रेशन। मैं जा रहता हूँ वहाँ पर। तो डिप्रेशन में कई लोग हैं, कई लोग अंधकार में हैं, तारीकी में रहते हैं, और कई लोग अपने सेल्फ में फंसे हैं, उनके सेल्फिश मोटिव से वो वहाँ रहते हैं। और ऐसे बहुत से एड्रेसेस हैं जो मैंने आपको भी बताए, ऐसे बहुत से एड्रेसेस जहाँ पर लोग रहते हैं। अगर आप मुसरी बेटे से पूछे कि कहाँ रहते हो, तो क्या कहता मैं सूअरों के बीच में रहता हूँ, कहीं मिलना हो तो आ सकते हो आप। तो उसका एड्रेस तो सूअरों के बीच में रहने का था। एक शख्स के बारे में लिखा हुआ है कि वो बदरूहों में जकड़ा हुआ था और वो कब्रों में रहा करता था। कब्रें दिखाती हैं इंसान के आइसोलेशन को, दिखाती हैं कोई होप नहीं है, टोटल डेडनेस। आज बहुत से लोग ऐसी सिचुएशन में हैं, उनको लगता कि हमारी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, और यही माइंडसेट हमारा हो जाता है। और खुदा चाहता है मैं और आप जो हैं आज पता लगाएं, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। क्योंकि आप का रहने का स्थान या रहने की जगह अगर डिसाइडेड है और आपने उसको सोच लिया कि मुझे यहाँ रहना है, तब कोई भी ताकत आपको वहाँ जाने से रोक नहीं सकती। इट्स अ मैटर ऑफ नोइंग द ट्रुथ, सच्चाई को जानने की ज़रूरत है। और इसलिए एक बात कही जाती है कि बर्ड्स विद द सेम फेदर फ्लॉक्स टुगेदर, यानी कि हर एक परिंदा, तोता तोते के साथ उड़ता है, कौवा कौवे के साथ उड़ता है, और कबूतर कबूतर के साथ उड़ता है। सिर्फ ईगल होता है जो अकेला उड़ता है, क्योंकि इतनी ऊंचे पे उड़ता है कोई वहाँ तक उसको फेलोशिप देने जा ही नहीं सकता। असलियत में इंसान वहाँ रहना पसंद करता है जो उसके लाइक माइंडेड होते हैं। इसलिए बुराई करने वाले बुराई करने वालों के साथ बैठना पसंद करते हैं, शराबी शराबी के साथ बैठना पसंद करता है, दुनियावी इंसान के साथ बैठना पसंद करता है। जो पैसे के बारे में बातें करते हैं बहुत, वो लालची लोग जो होते हैं पैसे वालों के साथ बैठ के बात करना चाहते हैं। कई लोग अपनी अपनी फेलोशिप खुद ढूंढ लेते हैं। और मैं बिलीव करता हूँ कि हमारे लाइफ का जो एड्रेस है वो सबको पता होना चाहिए कि वेयर डू वी आर लिविंग, हम कहाँ रहते हैं। अगर हमारा पता नहीं होगा, सही एड्रेस नहीं होगा, तो हम तक खुदा पहुँच नहीं पाएगा। क्योंकि खुदा पहुँचना वहाँ चाहता है जहाँ पर वो चाहता है कि हम रहें जाकर। इसलिए खुदा के कलाम से मैं शुरुआत करना चाहूँगा। ये मैंने अभी आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दिया था। सो लेट्स गो टू द बाइबल। साम 91 उसकी 10th to 13th वर्स पढ़ूँगा और इस पर थोड़ा सा हम फोकस करेंगे। और ये मेरी बुनियादी आयत है जिससे मैं चाहता हूँ बड़े ध्यान से सुने। लिखा हुआ है, नो हार्म विल ओवरटेक यू, नो डिजास्टर विल कम नियर योर टेंट, for he will command his angels concerning you to guard you in all your ways. They will lift you up in their hands
so that you will not strike your foot against a stone. You will tread on the lion and the cobra. You will trample the great lion and serpent. ये जो शख्स है इसको इतनी ब्लेसिंग्स मिल रही है सच्ची. उर्दू में लिखा है बड़ा अच्छा, तुझ पर कोई आफत नहीं आएगी, कोई वबा तेरे खेमे के नज़दीक नहीं पहुँचेगी, क्योंकि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करें. वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे, ता ऐसा ना हो कि वो तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे. तू शेर बबर और अफई को रौंदेगा, तू जवान शेर और अज़दा को पमाल करेगा. ये सब बरकतें हैं कि ऐसी क्या खासियत इस शख्स के अंदर है जिसमें खुदा कहता है कि देख, कोई भी वबा तेरे डेरे में नहीं घुसेगी, तेरे टेंट में कोई तकलीफ नहीं आएगी, तेरे आसपास कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा. मैं अपने फरिश्तों को तेरे हुजूरी में सौंप दूंगा कि जहाँ जहाँ तू जाएगा तेरी वो हिफाजत करेंगे. कितनी बरकतों से भरा हुआ ये शख्स दिखाई देता है. 91 ज़बूर जो है एक ऐसा कलाम है जिसको सबको पसंद है. मेरे साथ में कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात हुई जो कहते हैं मेरे साथ में कि जब भी आप भाई साहब दुआ करें मेरे लिए आके तो आप 91 पढ़कर ही दुआ करें. तो कई लोगों को ये इतना पसंद है कि 91 ज़बूर को बड़ा करीबी सा महसूस होता है. ऐसे क्या शख्स के अंदर खासियत थी कि खुदा ने इतने बड़े बड़े कीमती वायदे इस शख्स के साथ कर दिए कि देख, मुसीबत में गुजरेगा पर तेरे साथ फरिश्ते रहेंगे. देख, मुसीबतें आएंगी, तेरे टेंट में नहीं घुसने पाएंगी, तेरे डेरे में मुसीबतों को घुसने नहीं दूंगा. मैं तुझे ऐसा बना दूंगा कि शैतान या सांप जो भी होगा तुमको रौंद डालेगा. पावरफुल पर्सनैलिटी, ऐसा शख्स कितने लोग बनना चाहते हैं? मैं हूं अकेला इंसान. और भी आप लोग, प्रेज द लॉर्ड, कम ऑन, लिफ्ट योर हैंड्स. शर्मा नहीं, मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा, आपको सिर्फ बता रहा हूं कि ये हमारा कमिटमेंट होना चाहिए खुदा के सामने. वी वांट टू बिकम लाइक दिस. कितने लोग बनना चाहते हैं ऐसे कि खुदा कहता है मैं हूं तेरे साथ, फिक्र नहीं कर, मैं तेरे टेंट में किसी मुसीबत को घुसने दूंगा, तेरे परिवार को, खानदान को संभाल लूंगा, और देख तेरे साथ फरिश्ते लगे रहेंगे और तुझे कभी भी तबाह नहीं होने देंगे, तेरे पत्थर में ठेस नहीं लगने पाएगी. और ये सारी बरकतें एक शख्स के साथ खुदा ने जोड़ दी है. और मैं चाहता हूं इस शख्स से आपकी मुलाकात कराऊं. कितने लोग मिलना चाहते हैं शख्स से? हालेलुया. क्या करा था इस इंसान ने? इसकी 91 की 9th वर्स में इस शख्स से आपकी मुलाकात होगी और लिखा हुआ है, पर तू ए खुदावंद मेरी पनाह है. ये बात हम सब कह सकते हैं कि खुदा हमारी पनाह है, पर इससे फर्क नहीं पड़ेगा. इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा. मुसीबत फिर भी आ सकती है, तकलीफ़ें फिर भी घुसेंगी, क्योंकि ये वाली बात का जो स्टेटमेंट है दुनिया के सारे लोग, ख़ासतौर से मसीह लोग ये देते हैं, खुदा हमारा रेफ्यूज है, वो हमारा स्ट्रेंथ है, वो हमारा फोर्ट्रेस है और वो हमारी पनाह है. ये वाला क्लेम करने से नहीं होगी प्रॉब्लम सॉल्व. पर आगे लिखा हुआ है, तूने हक ताला को अपना मस्कन बना लिया है, इस वजह से तेरे डेरे में मुसीबत नहीं घुसेगी. बोलिए, मैंने हक ताला को अपना मस्कन बना लिया है. I have made God my dwelling place. Hallelujah. He is not saying, Lord, give me some dwelling place to restore myself or protect myself. He is saying, Lord, I want to make you my dwelling place. अगर कोई मुझसे मेरा एड्रेस पूछेगा तो मैं कहूँगा मैं खुदा में रहता हूँ. हालेलुया. अगर जब तक ये टेस्टिमनी हमारी नहीं है, जब तक हम इस लेवल तक नहीं पहुँचते हैं, हम जब तक ये वाली बात क्लेम नहीं कर सकते हैं कि हम तो खुदा में रहते हैं, चाहे कुछ भी होता रहे, चाहे मेरे डेरे के निकट 1000 गिरेंगे, दाएं और 10,000 गिरेंगे, पर मेरे मुसीबत मेरे घर में नहीं घुस पाएगी, कोई बीमारी मुझे छू नहीं पाएगी, कोई तकलीफ मुझे बर्बाद नहीं कर पाएगी, कोई दुष्ट शैतान मेरे सामने खड़ा नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैंने खुदा को अपना रहने की जगह बना लिया है. ये वाली बात की वजह से इसको ये बरकत मिली है, क्योंकि तूने खुदा को अपना मस्कन बनाया है, तूने खुदा को अपने रहने की जगह बना लिया है. इस वजह से तेरे लाइफ में वो मुसीबतें नहीं आएंगी. तो आज मैं चाहता हूं कि हम इस जर्नी को
थोड़ा शुरू करते हैं, इसमें आगे चलते हैं, और मेरे पास जितना समय होगा उसमें कोशिश करूँगा मैं सब कुछ कंप्लीट कर सकूँ। और आज खुदा ने चाहता है मैं और आप जो हैं समझें इस बात को कि खुदा की जो तमन्ना है वह है कि खुदा में हम रहने वाले हों। मैंने आपको बताया कि लोग गुस्से में, तैश में, घमंड में, इन चीज़ों में फंसे हुए हैं। खुदा चाहता है मैं और आप खुदावन में रहें, और इसके लिए आज हमें समझना पड़ेगा। देखिए, खुदा ने जब आदम को बनाया, बड़े गौर से समझेंगे, खुदा ने जब आदम को बनाया तो लिखा अपनी सूरत में बनाया, अपनी शबीह में बनाया, और बनाने के बाद जेनेसिस 2:15 में लिखा हुआ है, द लॉर्ड गॉड टुक द मैन एंड पुट हिम इन द गार्डन ऑफ ईडन। खुदा ने आदम को बनाकर अदन के बगीचे में रखा। कितने लोग जानते हैं चीज़ को? देयर वाज अ गार्डन, उसका नाम था ईडन, और ईडन गार्डन के अंदर खुदा ने आदम को रखा। खुदा ने आदम को ईडन में क्यों रखा? इसका एक रीज़न है। ईडन के 5 मतलब हैं, बस सुनिएगा। ईडन हैज़ 5 मीनिंग्स। फर्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ गॉड, खुदा की हुजूरी। दूसरा, ओपन डोर टू हेवन, क्योंकि कोई गुनाह नहीं था, कोई हेवन वॉज नॉट शट डाउन, बिल्कुल ओपन डोर टू हेवन। तीसरा है, इट वॉज अ स्पॉट, एक स्थान बनाया खुदा ने। और चौथा मतलब है अ डिलाइटफुल प्लेस, एक खुशनुमा जगह जहाँ पर इंसान रहना पसंद करता है। और पांचवा है एन एनवायरमेंट, गॉडली एनवायरमेंट। ये ईडन के मतलब हैं, और खुदा ने आदम को अपनी हुजूरी में रखा। बोले खुदा की हुजूरी में। क्यों खुदा ने आदम को हुजूरी में रखा? उसके पीछे एक रीज़न है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मछली को पानी से बाहर कर दें तो सरवाइव नहीं कर सकती। पेड़ को, पौधे को ज़मीन से उखाड़ कर हटा दें तो वो पनप नहीं सकता। परिंदों का आकाश से दूर रखा जाए तो सरवाइव नहीं कर सकते। और इसी तरह से इंसान को अगर खुदा की हुजूरी से दूर कर दिया जाए तो ऑटोमेटिकली लाइफ बर्बाद हो जाएगी। ये जो भेद है, जो सीक्रेट है, इसको शैतान अच्छी तरह जानता है। इब्लीस इस चीज को इतना अच्छी तरह जानता, कहता है तुम सारी चीजें ले लो मगर खुदा की हुजूरी में मत रहना, क्योंकि खुदा की हुजूरी में अगर तुम टिक गए तो तुम मेरी जिंदगी को तबाह करने वाले बन जाओगे। इसलिए उसकी पूरी कोशिश होती है, आप शुरू से लेकर आखिर तक देखिए, बगीचे के अंदर आदम हव्वा रहते थे, खुदा से रोज मिला करते थे। मगर शैतान का टारगेट क्या था? शैतान का टारगेट फल खिलाना नहीं था। शैतान का टारगेट ये था कि ऐसा क्या करूं कि खुदा खुद ही इनको लात मार के निकाल दे प्रेजेंस ऑफ गॉड से। दैट वाज द प्लान, और ये प्लान उसका सक्सेसफुल हुआ, हम सब जानते हैं। और यही शुरू से शैतान की कोशिश है कि हमारी ज़िंदगी हम खाएं, पिए, एंजॉय करें, गाड़ियां खरीदें, मकान खरीदें, खूब ऐश करें, वेकेशन बनाएं, पैसा कमाएं, पर हम खुदा की हुजूरी में ना रहें। अगर खुदा की हुजूरी से दूर हो गए ऑटोमेटिकली खत्म हो जाए। जब मछली को पानी से दूर कर दो अपना मर जाएगी, पौधे को खाड़ कर फेंक दो जमीन से अपना खत्म हो जाएगा, परिंदों को कैद में डाल के रखो उड़ने ना दो वो वैसे ही खत्म हो जाएगा। इसी तरह से खुदा के लोग खुदा की हुजूरी से अगर दूर हो जाएंगे तो शैतान को मालूम है इस चीज से ही बर्बाद हो जाएंगे। हालेलुया। सो इसलिए कोई भी चीज जो हमें खुदा से दूर करने की प्लान में आए, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करे, चाहे इंटरनेट हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे आपकी कोई भी चीज़ें हो जिसमें आप इन्वॉल्व अपने आप को करते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको खुदा से हुजूरी से दूर करे, हमें उसको पहले दूर करने की जरूरत है। हालेलुया। अब ज़्यादा खामोश हो गए आप लोग। देखिए, मैं खुदा कलाम की बातें सिखाऊंगा, आपको समझ में आएगी अच्छी तरह, और अपनी डिसीजन अपने आप ही लेना होता है। अब मैं किसी को नहीं कहता तुम गलत हो, मैं अच्छा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। हम सब एक ही नाव में हैं और हम सबको अपने आप को बचाना है। वी हैव टू सेव आवर सेल्फ फर्स्ट। अगर हमने अपने आप को नहीं संभाला और बचाया
तो हम बहुतों के लिए बचाने वाले नहीं बन पाएंगे। हालेलुया। ज़बूर 84 उसकी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी आयत में पढ़ूंगा और इससे हमें पता लगेगा कि खुदा कितना इंटरेस्टेड है खुदा की हुजूरी में हमें रखने के लिए। इसलिए बाइबल में आप कभी भी नहीं पढ़ेंगे कि खूब बढ़ो, खूब तरक्की करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आपको हमेशा बाइबल में लिखा मिलेगा, कम बैक टू मी, रिटर्न टू गॉड, कम बैक टू मी, रिटर्न टू गॉड, यानी कि वापस लौट आओ। तुम्हारे वापस लौटने में और तुम्हारे मेरे पास आने में यही तुम्हारी भलाई है। इसलिए लिखा है सबसे पहले क्या करो, खुदा क्या कहता है, मेरे पास लौट आओ, आओ सब प्यासे लोगों मेरे पास आओ, पानी के पास आओ। खुदा हमेशा बुलाता है, कम बैक टू गॉड। खुदा के नज़दीक आओ तो वो तुम्हारे नज़दीक आएगा। ये सब परिश्रम करने वाले बहुत से सभी लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। ये सारी बातें क्या है, खुदा कॉल कर रहा है। कहाँ से तुम चले गए, तुम खुदा की हुजूरी छोड़कर चले गए थे। नाउ आई एम calling you back in his presence. This is the plan of God. यहां पर एग्जाम्पल है एक परिंदे का। मैं बाइबल में चींटियों तक का जिक्र है, चींटियों से भी लिखा है, जब कभी तुझे अक्लमंदी सीखनी हो और तुझे अपनी मनी मैनेजमेंट कैसे करना है कभी सीखना हो तो तुझे चींटियों के पास जाना पड़ेगा। हालेलुया। वो लिखा है धूप काल में, जब धूप पड़ रही होती है तो उस वक्त में बड़ी कड़ी मेहनत के साथ अपने लिए खाना पीना इकट्ठा करती है। बारिश के सीज़न से पहले काम करती है, उसको मालूम है रिस्टोर कर लूँगी तो उसके बाद मेरे बच्चे आराम से एंजॉय करेंगे। परिंदों से खुदा सिखाना चाह रहा है। यहाँ पर परिंदों के जिक्र यहाँ पर लिखा हुआ है। मैं चाहता हूँ पहले ऐसे पढ़ेंगे, लिखा है लश्करों के खुदावंद तेरे मस्कन क्या ही दिलकश हैं। मेरी जान खुदावंद की बारगाहों की मुश्ताक है, बल्कि गुदास हो चली। मेरा दिल और मेरा जिस्म खुदा, जिंदा खुदा के लिए खुशी से ललकारते हैं। आए लश्करों के खुदावंद, आए मेरे बादशाह और मेरे खुदा, तेरे मज़बहों के पास गौरैया ने अपना आशियाना और अबाबिल ने अपने लिए घोंसला बना लिया है, जहाँ वो अपने बच्चों को रखे। मुबारक है वो जो तेरे घर में रहते हैं, वो सदा तेरी तारीफ करेंगे। हालेलुया। खुदा उनके यहाँ सिखाना ही चाह रहा है। दाऊद कहने लगा, मैं बहुत ही खुश हुआ जब तेरे घर में घुसा तो मुझे वहाँ पर चिड़िया दिखाई दी, मुझे गौरैया दिखाई दी, जिसने खुदा के मज़बह के पास अपने बच्चों को रखने का इंतजाम किया है। Why this bird chose the house of God? खुदा के घर को क्यों चुना? उसको मालूम था मेरे बच्चे अगर कहीं महफूज हैं तो खुदा के घर में है, इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। हालेलुया। आज प्रॉब्लम पता है क्या बच्चों के साथ पेरेंट्स की, कि कई दफ़ा बच्चे इतने दुनिया में चले जाते हैं कि दे आर नो मोर अवेलेबल फॉर द प्रेजेंस ऑफ गॉड। दे आर नो मोर अवेलेबल टू टॉक टू यू पर्सनली। दे आर नो मोर अवेलेबल टू गो टू द हाउस ऑफ गॉड। खुदा के घर जाने के लायक नहीं। क्यों? बिकॉज दे आर सो मच इन द वर्ल्ड। और सबसे बड़ी मुसीबत जो माँ बाप की है अमेरिका के अंदर, वही कि खुदा के घर में बच्चे पाए नहीं जाते। मैं एक अमेरिका में, एक कैलिफोर्निया में एक बड़े अमीर आदमी के पास मुझे वो शख्स अपने घर में दुआ कराने के लिए ले गया कि भाई से मेरे घर में दुआ करिए, बहुत पुरानी बात है। गया उनके घर, बेवरली हिल्स के अंदर उनका घर था, बड़ा आलीशान घर। मैंने पहली बार देखा था ना बड़ा घर। पर उस शख्स के आंखों में आंसू थे। उस शख्स ने मुझे एक स्टेटमेंट दिया, आज तक मैं भूलता नहीं। उसने कहा, भाई साहब मुझे अमेरिका ने बहुत कुछ दिया है, बहुत बिजनेस मेरे पास है, पैसे की कमी नहीं है। कहने लगा सब कुछ दिया है अमेरिका ने मुझे, पर मेरे बच्चे छीन लिए मुझसे। उसकी आंखों में आंसू थे एंड ही वाज क्राइंग एंड टेलिंग कि मेरे बच्चे मेरे पास से चले गए। दे आर ऑल इन द वर्ल्ड। अजीजों, चिड़िया ने अक्लमंदी से अपने बच्चों के लिए खुदा के घर में एक आशियाना बनाया है। अपने बच्चों को संडे स्कूल भेजो, अपने बच्चों को खुदा के घर में लाओ, खुदा की हुजूरी में बैठाओ, खुदा के गानों को सुनाओ, खुदा की इबादत करवाओ, खुदा की सिताइश करवाओ, खुदा के खादिमों के साथ में जोड़ दो, ताकि उनकी जिंदगियां खुदा के घर में महफूज रहें।
अदरवाइज यही बच्चे तो खुशी का कारण है और यही बच्चे दुख देंगे एक दिन। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, मुझे खुदा ने 2 बेटे दिए थे, आज दोनों खुदा के खादिम हैं, दोनों खुदा के घर में पाए गए। उनका प्लेग्राउंड खुदा का घर ही था, वो घर में ही दौड़ते भागते रहते थे, वहीं बड़े हो गए, वहीं उन्होंने खुदा की खिदमत को सीख लिया और वहीं वो कभी उन्होंने शराब को हाथ नहीं लगाया, कभी उन्होंने सिगरेट को हाथ नहीं लगाया, कभी उन्होंने अय्याशी नहीं करी। उनकी ज़िंदगियाँ खुदा में महफूज इसलिए रहीं क्योंकि खुदा के घर में उनको रखा गया था। आज मुझे अच्छा लगता है यूहान को देखकर कि खुदा के घर में ये बच्चे जब ग्रो करेंगे तो ये खुदा के खादिम बनेंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तेरे घर में जो रहते हैं मुबारक हैं, क्योंकि वो तेरी सिताइश हमेशा करते रहेंगे। हालेलुया। 91 ज़बूर का पहला आयत हमें बड़ी पसंद है। He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. जो हक ताला के पर्दे में रहता है वो कादर मुतलक के साए में सुकूनत करता है। जो खुदा के घर में रहता है, जो खुदा की हुजूरी में रहता है, वो हमेशा सुकून से भरा होता है। बोले सुकून। आज सुकून कहाँ मिलेगा? लोग ढूंढ रहे हैं सुकून को। मुझे मालूम है कहाँ मिलता है, वो मिलता है खुदा के घर में। हालेलुया। सुकून खुदा के घर में मिलता है और खुदा चाहता है मैं और आप इस चीज़ को महसूस करें। इसलिए जो खुदाउन यीशु मसीह की जो टीचिंग थी, मैं अब थोड़ी सी टीचिंग तब जाऊंगा, जो खुदाउन यीशु मसीह की शिक्षा थी, जो तालीम थी, वो बरकत देने के लिए नहीं थी। सिर्फ तुम्हें बरकत मिले, तुम्हें तरक्की मिले, तुम्हें आशीष मिले, तुम्हें गाड़ी मिले, तुम्हें घर मिले, तुम्हें ये मिले, दैट वाज पैकेज डील। एक्चुअली मैं यूँ कहूँगा ये तो एक पैकेज डील में था। ये तो अपने आप मिलने वाली चीज़ है, इसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप मिलती है। पर टीचिंग जो थी, जो तालीम है, वो है यूहन्ना 15:5 और 7 में लिखा हुआ है। वहाँ लिखा हुआ है, आई एम द वाइन, यू आर द ब्रांचेस, एंड ही हु अबाइड्स इन मी एंड आई इन हिम bears much fruit, for without me you can do nothing. आज दुनिया पूरी तलाश में है कि खुदा को छोड़कर कैसे तरक्की करी जाए, खुदा को किनारे करके कैसे बरकत को हासिल किया जाए। देखिए दुनिया के लोग करेंगे तरक्की आपके सामने, मैं आपको बता रहा हूँ, दुनिया के लोग आपके सामने दिखाई देंगे कि वो बहुत बढ़ रहे हैं, खूब तरक्की कर रहे हैं, सब कुछ बड़ा है। 73 ज़बूर अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ लिखा आपको मिलेगा कि मैं जब लोगों को देखा, दुष्ट लोग बढ़ते चले जा रहे हैं, तरक्की करते जा रहे हैं, तो कह लगा बड़ा मुझे अफसोस हुआ। कह लगा मैंने बेकार अपने आपको इतना साफ़ सुथरा रखा, पर कह लगे जब मैंने खुदा के घर में जाकर उसके अंजाम को देखा कि खुदा ने उनको किन स्थानों में रखा हुआ है, वो फिसलने वाले स्थानों में है, वो कब तबाह हो जाएंगे पता नहीं रहेगा। पर खुदा के लोग अगर तकलीफ उठाकर, परेशानी उठाकर, समस्याओं में जूझते हुए भी अगर खुदा के घर में टिके रहेंगे तो हमेशा महफूज रहेंगे। हालेलुया। इसलिए खुदा ने कहा मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। दुनिया करेगी, दुष्ट लोग करेंगे, वो आपके एग्जाम्पल नहीं है। हालेलुया। हमारा एग्जाम्पल हमारा खुदा यीशु मसीह का कलाम है। Without me you can do nothing. If you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire and it shall be done for you. तुम्हारे अंदर मेरे कलाम अगर बना रहेगा और मैं तुम में बना रहूँगा तो फिर देखना जो कुछ मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि खुदा ने कहा मुझसे जुदा होकर, यानी कि खुदा की प्रेजेंस को छोड़कर हम तरक्की कभी नहीं कर सकते। कितने लोग एग्री करेंगे चीज़ को? हालेलुया। मैं आपके हाथ इसलिए उठा रहा हूँ ताकि आप इस चीज़ को समझें। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कोई मैसेज नहीं प्रीच कर रहा हूँ मैं आपके साथ, कोई मैं सरमन प्रचार नहीं कर रहा हूँ, ये रियलिटी है, ये मेरी रियलिटी है। इफ आई वांट टू बी सिक्योर एंड फ्लरिश, आई शुड बी अबाइड इन हिज वर्ड। मुझे उसके कलाम से बना रहना बहुत ज़रूरी है। ये आपके लिए नहीं है, मेरे लिए भी कलाम है, हम सबके लिए कलाम है और खुदा चाहता है मेरा आप इसको समझें। इसलिए हमारा एड्रेस क्या होना चाहिए? अगर नए नियम के हिसाब से देखा जाए तो हमारा एड्रेस क्या होना चाहिए? हैं? कहाँ रहते हो भाई? ट्रू वाइन में।
यीशु मसीह के साथ जुड़े। हालेलुया। ये हमारा एड्रेस होने की ज़रूरत। तो खुदा चाहता है मेरा आप जो हैं, मैं शिक्षक ते लेके जा रहा हूँ, तालीम ते लेके जा रहा हूँ। कोलोसियन 1 चैप्टर 13 वर्स में लिखा हुआ है, और वहाँ लिखा है, फॉर ही हैज़ रेस्क्यूड अस फ्रॉम द डोमिनियन ऑफ डार्कनेस एंड ब्रॉट अस इनटू द किंगडम ऑफ द सन ऑफ हिज लव्स। खुदा हमें तारीकी से निकाल कर, देखिए अगर हम तारीकों में, कई दफ़ा लोग तारीकी में रह के कहते हैं खुदा मुझे यहीं ब्लेस कर, मुझे बरकत। देखिए मुसीर बेटा जब आपके घर से चला गया तो बाप ने मनी ऑर्डर नहीं भेजा उसको कि मेरा बेटा बेचारा सूरों में रह रहा होगा, भूखा होगा, चलो मैं मनी ऑर्डर भेज देता हूँ। ध्यान रखिएगा, तारीकी में ब्लेसिंग की सप्लाई नहीं होती, आशीषों की सप्लाई तारीकी में नहीं होती। तारीकी से खुदा निकाल कर अपने बेटे की बादशाहत में जब लेके आता है, तरक्की वहां से होती है। When you come in his presence again, दोबारा से जब आप खुदा की हुजूरी में आ जाते हैं, कई दफ़ा कई लोगों की लाइफ स्टाइल में ऐसा होता है कि खुदा का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं है। देखिए कुछ बातें आपको ऐसा नहीं लगे कि मुझे पाई साहब ने बोल दी हैं, मेरे को पाई साहब ने कभी कुछ नहीं बोला, पर जो भी खुदा कहता है मैं अपनी रूह से, खुदा की रूह से जो मुझे मिलता है बोलता हूँ। अगर सैटरडे संडे आपके प्लान्स इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आप खुदा के घर छोड़ देते हो, यू आर लिविंग इन डार्कनेस। हमारे लिए सबसे बड़ा क्राइम पता क्या है? जो खुदा ने सेलेक्ट करा हुआ है डेज, उसको हम निग्लेक्ट करके कुछ और करते हैं। बिगेस्ट क्राइम। जो खुदा के लोग, जो डेडिकेटेड लोग, जो कमिटेड लोग हैं, उनको खुदा ने अपनी हुजूरी में रखने का वादा रखा हुआ है, और जब हम खुदा की हुजूरी में जमा होते हैं तो हमारी पूरा खानदान खुदा के घर में पाया जाना चाहिए। इफ यू आर गिविंग मोर इंपॉर्टेंस टू द योर प्लानिंग्स, योर प्लान्स, आप कहेंगे बता हमारे तो सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी होती है। ओके, मुझे जवाब चाहिए इसका एक, और वो ये है कि संडे में अगर आप खुदा के घर को छोड़कर कहीं और एंजॉय करते हैं, तो मैं कहता हूँ वो एंजॉयमेंट आपको हमेशा प्रिक करना चाहिए, क्योंकि आर लूजिंग द प्रेजेंस ऑफ गॉड। आपका वो मजा करना आपको प्रिक करना चाहिए कि मुझे कहाँ होना चाहिए तो मैं कहाँ पर हूँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए अजीजों, आज हमारी जिम्मेवारी है कि हम तारीकी से निकाले गए हैं, तो वापस तारीकी में एंजॉय करने कैसे जा सकते हैं? वी शुड बी इन द हाउस ऑफ गॉड, वी शुड बी इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, वी शुड बी इन दिस एनवायरमेंट जहां पर हमारी लाइफ सिक्योर होती है। हालेलुया। हो सकता है मुझसे एग्री ना करें, पर आई हैव टू प्रीच द वर्ड। 1 पीटर 2:9 में लिखा है, लेकिन तुम एक बरगुज़िदा नस्ल, शाही काहिनों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा के खास मिल्कियत है, ताकि उसकी खूबियाँ जाहिर करो, जिसने तुम्हें तारीकी से अपने अजीब रोशनी में बुलाया है। कहाँ पर उसके गुण, उसकी खूबियाँ प्रकट होंगी, जाहिर होंगी? खुदा की हुजूरी में रहने से। हमें खुदा ने बुलाया है, इसलिए कभी भी दुनिया में रहकर हम तरक्की नहीं कर पाएंगे, हमें खुदा की प्रेजेंस में आकर ही तरक्की करनी पड़ेगी। हालेलुया। कई चीज़ें जो हैं इसी बात पर अटकी हुई हैं कि वी आर नॉट गिविंग प्रायोरिटी टू गॉड्स प्रेजेंस। कई चीज़ें इसी पर अटकी हुई हैं। कई रिश्ते नहीं बन पा रहे हैं, शादियाँ नहीं हो पा रही हैं, कई बिजनेस नहीं फ्लरिश हो पा रहे हैं, कईयों के घर में खुशहाली नहीं आ पा रही है, क्योंकि दे आर स्ट्रगलिंग बिटवीन what should be the priority? The world, the things, making money, or the house of God? Praise the Lord. इस पे कई लोग अटके हुए हैं। खुदा चाहता है मेरा आप जो हैं अपनी ज़िंदगी में प्रायोरिटी को समझें। मैं आज आपके साथ में कुछ बातें शेयर करूंगा जिसमें आपको पता चले क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें खुदा के घर से दूर ले जाती हैं। Sometimes we are so much close to God,
we read Bible, we worship the Lord together, we are in the fellowship. पर क्या चीज़ें हैं जो हमें ले जाती है बाहर, उसको भी अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है. क्या चीज़ें थी जो आदम हवा को अदन के बगीचे से बाहर लगी थी, उसको हमें सोचना पड़ेगा. देखिए, दो बड़े खतरनाक शब्द हैं या दो वर्ड्स हैं. एक है इंडिपेंडेंट और दूसरा है रिबेलियन. ये इतने खतरनाक वर्ड है इन द किंगडम ऑफ गॉड. जब आप और मैं अगर इससे कहीं अटके हुए हैं, जैसे आज के बहुत से बच्चे कहते हैं, ओ दिस इज माई लाइफ, आई कैन डू एनीथिंग. ये हमें अमेरिका ने सिखाया है, वर्ल्ड ने सिखाया है कि यू कैन डू एनीथिंग, दिस इज योर लाइफ. पर व्हेन यू रीड द बाइबल, हमें खुदा के कलाम का जो हिस्सा है जब समझ में आता है, तो खुदा ने हमें कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं बनाया. अगर इंडिपेंडेंट बनाया तो पहले दिन ही खुदा आदम को बना देता, कहता भाई देख अपना खाना पीना देख ले, भाई कैसे खाना पीना है. खुदा ने छठे दिन क्यों बनाया? कि पहले सारे खाना पीना बनाया, रहने की जगह बनाई, एनवायरनमेंट बनाया, तब आदम को बनाया, ताकि खुदा से ये ना कहे खुदा तूने मुझे कहाँ फंसा दिया, सब कुछ तेरे पास है भाई. तो खुदा ने हमें इंडिपेंडेंट कभी नहीं बनाया. इंडिपेंडेंट वर्ड जो है हमेशा विद्रोह के बाद मिलता है. हमारे देश इंडिया पाकिस्तान विद्रोह के बाद, रिबेलियन के बाद, रिबेलियस लोग जो खड़े हुए थे, जिन्होंने विद्रोह किया था, उसके बाद आज़ादी मिली थी. सो आज़ादी के साथ कनेक्शन क्या है? रिबेलियन का. रिबेलियस नेचर इज ऑलवेज ब्रिंग इंडिपेंडेंट लाइफ. जब भी इंसान रिबेलियस होता है, वो अकेला छोड़ दिया जाता है. जा भी तू खुद कर अपने आप. जैसे मुस्लिम बेटा अपने बाप के घर से इंडिपेंडेंट होने के लिए निकला था, एंड ही रिबेल अगेंस्ट हिज फादर. मुझे ये चाहिए, मेरा दे दो, मेरा हिस्सा दे दो. सोच के देखिए, बाप अभी जिंदा ही है, उसको अपना हिस्सा मांग रहा है. कितनी बड़ी बेइज्जती की बात थी उस खानदान में. मगर वो चला गया रिबेल करके. तो इंडिपेंडेंस से पहले रेबेलियन बिहेवियर पहले सामने आता है. और इंसान के इस नेचर की वजह से आदम हवा को बाहर निकलना पड़ा. रिबेल अगेंस्ट द विल ऑफ गॉड. उन्होंने कहा खुदा बाप, हम तो तेरे बात को नहीं समझ रहे, हम तो वाला फल खाएंगे जो तूने मना किया है, अब चाहे कुछ भी हो. खुदा ने कहा ओके. फ्रॉम नेक्स्ट डे ऑनवर्ड आदम को अदन की वाटिका से बाहर कर दिया और वो इंडिपेंडेंट हो गया. सोच के देखिए, आदम की सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होगी, हवा की सबसे मिस्टेक क्या होगी. काश कि हमें दुष्ट ने, इबलीस ने बहकाया ना होता. क्योंकि क्या बहकाया था, आपको मालूम है? बहकाया ये था कि जिस दिन ये फल तुम खाओगे खुदा जैसे हो जाओगे. दोनों मिलके बड़े एक्साइटेड हो गए. देखिए, मैं ये नहीं कहता पहले हवा ने खाया फिर आदम खाया, दोनों को मैं कंबाइन कर लेता हूँ. यहाँ पर डिबेट लंबी हो जाएगी अदरवाइज. हैं, खाया तो दोनों था. ये दोनों खुदा जैसे थे ऑलरेडी. लेट अस मेक मैन अकॉर्डिंग टू आवर इमेज एंड आवर लाइकनेस. दे वर लाइक गॉड ऑलरेडी. मगर बेवकूफ बनाया गया इस बात से कह के तुम खुदा जैसे हो जाओगे. एंड दिस मेड देम रिबेलियस. यही थॉट ने उनको रेबल बना दिया. और उसके बाद इंडिपेंडेंट लाइफ उन्होंने जीनी शुरू करी, जिसमें ऊंट कटारे, मुश्किलातें, परेशानियां, ये सब झेल रहे हैं. प्रॉब्लम क्या है? दे लेफ्ट द प्रेजेंस ऑफ गॉड बिकॉज ऑफ देयर बैड बिहेवियर. और आज कई दफ़ा हमसे खुदा जब बात करता है तो हमारा रेबल नेचर सामने जाता है. वी डोंट एक्सेप्ट आवर फॉल्ट्स, वी डोंट एक्सेप्ट कि यस यू आर राइट,
खुदा तो सही कह रहा है, हमें अपने जीवन को सुधारना चाहिए, हमें अपनी लाइफ को ठीक करना चाहिए, अपनी ज़ुबान को हमें ठीक करना चाहिए, अपने विचारों को ठीक करना चाहिए, हमें अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करना चाहिए, हमें ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था, हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, हमें अपने आप को ठीक करना है। ये इस बात को ना बोलकर हम लोग रेबेल बन जाते, कहते हैं नहीं हमारी गलती नहीं है, उन्होंने ऐसे कहा तो हमने फिर ऐसा बोला, वरना ऐसा तो ऐसा नहीं, वो बोलते पैसा हमारी गलती, ना 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 हमारी, उनकी है सारी गलती। हम लोग क्या करते हैं, दिस इज रेबेलियस नेचर, और हमें कहाँ ले जाता है बताइए, खुदा की हुजूरी से बाहर। और जब आप बाहर निकल जाते हैं, यू आर इंडिपेंडेंट, जो कुछ आप करोगे आप जिम्मेवार खुद है। इसलिए इस नेचर से बचने की जरूरत है जो हमारे को इंडिपेंडेंट बना देता है। सिर्फ खुदा ने हमारे को इंटरडिपेंडेंट बनाया। हम सबकी जरूरत है। क्या आप एग्री करते हैं चीज को? हम सबको एक दूसरे की है जरूरत। हम अपने अकेले के लिए नहीं बनाए गए हैं। देखा, जब उस दिन को नजदीक आता देखो तो क्या करना, आपस में जमा होने से बाज मत आना। क्यों? क्योंकि इससे तुम्हारी सिक्योरिटी है। यू नीड ईच अदर। हम सबको एक दूसरे की जरूरत है। हमारे लिए कोई भी ऐसा नहीं कि लेस इंपॉर्टेंट कोई नहीं है। एवरीबॉडी इज सो इंपॉर्टेंट इन द हाउस ऑफ गॉड। पर इसके लिए हम सबको अपने बिहेवियर पर फोकस करने की जरूरत है। और क्या चीज़ है जो हमें खुदा से दूर करती है? और वो मिलेगी आपको गैलेशियंस 5 chapter 7 to 9। वहाँ लिखा हुआ है, यू रैन वेल, हु हिंडर्ड यू फ्रॉम ओबेइंग द ट्रूथ। तुम तो अच्छी तरह दौड़ रहे थे, अच्छी तरह बाल पढ़ रहे थे, अच्छी तरह इबादत कर रहे थे, अच्छी तरह खुदा में ग्रो कर रहे थे, अच्छी तरह, पर हमारे साथ में कुछ हुआ है और वो चीज़ें, हमारी दुआ, इबादत, शुक्रगुजारी, खुशियाँ सब लुट गई क्योंकि हमें किसी ने रोक दिया है। तुम अच्छी तरह दौड़ रहे थे, किसने तुम्हें हक के मानने से रोक दिया है। यह तरकीब, उर्दू में अच्छा लिखा है, यह तरकीब तुम्हारे बुलाने वाले की तरफ से नहीं है। यानी कि खुदा ने आपको इसके लिए नहीं बताया कि ये खुदा की तरफ से है। आपकी दौड़ रुक गई है, ये खुदा की तरफ से नहीं है, तो इसका मतलब किसी और की तरफ से है। किसकी तरफ से है? तो उसने, पौलुस ने खुदा से जो विजडम हासिल करी थी, उसने इसको रिवील करा। उसने कहा, अ लिटिल लेवन लेवन्स द होल लंप। थोड़ा सा खमीर सारे गुंधे हुए आटे को खमीर कर देता है। इसका मतलब है दौड़ कौन रोक रहा है? थोड़ा सा, कितना? 5-6 किलो के खमीर की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा खमीर, थोड़ा सा विद्रोह, थोड़ा सा गुनाह, थोड़ी सा लालच, थोड़ा सा घमंड, थोड़ा सा झूठ, थोड़ा सा फरेब, थोड़ा सा छल, थोड़ा सा बदतमीजी, ये आपकी लाइफ को रून कर देता है और ऐसे ऐसे करके सारा गुंधा हुआ आटा खराब हो जाता है। और हम तो अच्छी तरह दौड़ रहे थे। हमारी दौड़ किसने रोक दी? हमारी बाइबल को पढ़ना किसने रोक दिया? इबादत करना किसने रोक दिया? खुदा के घर में आने के लिए किसने रोक दिया? कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपको रोकते चली जा रही है? शायद वो थोड़ा सा खमीर है जिसका हमने ख्याल नहीं रखा। कौन आपकी दौड़ रोक रहा है? कौन खुदा के घर से दूर कर रहा है? थोड़ा सा खमीर। अजीजों, आज हम सबको कौन सी चीज़ें हमें खुदा के घर से दूर ले जा रही हैं, उस पर फोकस करना है। हमारा बिहेवियर तो नहीं है कहीं, हमारा एटीट्यूड नहीं। कई लोगों का एटीट्यूड प्रॉब्लम होती है कि इनको कुछ नहीं कह सकते, इनकी एटीट्यूड प्रॉब्लम है। हमारा एटीट्यूड कितना अच्छा है बताइए? कैन यू कंपेयर योर एटीट्यूड विद द क्राइस्ट एटीट्यूड? तो हम लोग को तो 0 नंबर मिलेंगे यीशु के कैरेक्टर को देखकर। हमें तो 0 मिलेंगे। तो बेटर ये कि हम यीशु के कैरेक्टर को एडमायर करें, उसी तरह बनने की कोशिश करें, हमारा बिहेवियर बदलता चले जाए। हम सबके चेहरे से जब खुदा का कलाम या खुदा की हुजूरी दिखाई देती है तो लिखा, हम दर्जा बदर्जा उसी सूरत में बदलते चले जाते। कितने दर्जा बदल, एवरी डे हम रोज 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 रोज, मैं नहीं कह रहा हम एकदम अचानक से यीशु मसीह हो जाएंगे, नहीं, बट ऑलवेज ट्राई टू हाइड योर सेल्फ और खुदाउन के साथ में बढ़ने की कोशिश करें। इसलिए पौलुस कहता है, नो मोर आई बट क्राइस्ट लिव्स इन मी। हु इज लिविंग इनसाइड मी? कहता है, नो मोर आई,
अब मैं जिंदा न रहा पर मसीह मुझ में जिंदा है। इसका मतलब अब जब दिखाई देता है तो मसीह दिखाई देता है, जब बोलता है तो मसीह बोलता है, वो चलता है तो मसीह चलता है, जब उसको कोई डिसीजन ले होता है मसीह डिसीजन लेता है। वो अपने आप को साबित नहीं करता, दिखाता नहीं। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी डेड है। जब तक हमारी जिंदगी जिंदा रहेगी वी विल नॉट एबल टू। सो हमारा बिहेवियर, हमारा एटीट्यूड इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात होनी चाहिए वी हैव टू बिकम लाइक हिम। हमारा जो प्लान ये नहीं है कि हमें खुदा बरकत और आशीष दे, हमारा प्लान ये है कि वी हैव टू बिकम लाइक हिम। जो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, जो दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को खुदा के हवाले सौंप दिया करता था। ऐसा शख्स बनने के लिए मुझे और आपको अपनी जिंदगी के अंदर अपने बिहेवियर पर काम करना पड़ेगा। हालेलुया। एक जगह और लेके चलूंगा आपको, अमसाल की किताब उसका 23 बाब की 10वीं आयत, प्रोवर्ब्स 23 चैप्टर एंड 10th वर्स में। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो समझने की जरूरत है। लिखा है, कदीम हुदूद को ना सरका, पुराने सिवानों को ना बढ़ाना, या रिमूव नॉट द ओल्ड लैंडमार्क। ये हम जो पाकिस्तान और इंडिया से आए ये ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं। जितनी चादर हो उतने ही पैर, है ना। इसका मतलब है कि हमें कई दफ़ा ये दुनिया की चीज़ें इतना अट्रैक्ट करती है कि हमारी चादर छोटी होती है और हमारे पैर ज़्यादा फैल जाते हैं। और इस वजह से हमारे लिमिटेशंस हम भूल जाते हैं कि हमारी लिमिट्स क्या है। और यही चीज़ें हमें कई दफ़ा खुदा से दूर कर देती। हम इतने ज़्यादा उलझ जाते हैं उन्हीं चीज़ों को। जैसे मैं बहुत से जवानों को काउंसलिंग करता हूँ और आज बहुत से जवान जो हैं क्रेडिट कार्ड के ट्रैप में फंसे हुए, क्योंकि उन्होंने इनकम इतनी थी और हिसाब किताब इतना बना लिया कि दे देंगे सैलरी आएगी तो, और बीच में नौकरी भी छूट गई। अब बताओ ये वो बिल तो वहीं पड़ा हुआ है। तो कई लोग क्या करते हैं, इस वाले बिल को पूरा करने के लिए कहीं और से लोन लेकर उसको वहाँ पकड़ा देते हैं, और उसके बाद ये वाला खड़ा बंदा हो जाता है। थोड़ा ये वाला मांगता, कहता अच्छा रुक जाओ, फिर इधर से लेते हैं, इधर से लेकर इधर पकड़ा देते हैं, और ऐसे करके अपने ऊपर इतना बड़ा कर्जा नवा लेते हैं। और ऐसे कई जवानों से मेरी बातचीत हुई और मैंने कहा बेटा अपनी औकात में रहो, अपने आप को अपनी चादर में समेट कर रखो। हालेलुया। इसलिए यही चीज़ें इंसान की लाइफ को खुदा से दूर ले जाती है, क्योंकि हम उस ट्रैप में फंस गए हैं, चादर से पैर चले गए बाहर। हालेलुया। ऐसे कितना टाइम है? फिनिश हो गया? भाई सुन गया फिनिश हो गया, तो मैं अभी फिनिश करता हूँ उसको। फिर आपके चेहरों को देखकर मुझे लग नहीं रहा कि आपको रोकने के लिए कह रहे हैं आप। एक और चीज़ बड़ी ज़रूरी है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, उसको जल्दी से फिनिश करता हूँ। जब खुदाउन ने खुदा के बारे में बात करी तो उसने अपने आप को खुदा को कंपेयर किया किसी चीज़ से। उसने कहा तुम दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकते। तो एक मालिक तो है खुदा, दूसरा मालिक हम सोचते शैतान बोलेंगे यीशु मसीह। उसने कहा नहीं, शैतान की कोई औकात नहीं है। दूसरा जो मालिक है वह है पैसा, धन दौलत। ये दो हैं जो लीड करते हैं इंसान को, और ऐसा लीड करते हैं कि एक से तो जुड़ा रहता है बंदा और दूसरे को तुच्छ जानता है, दूसरे को हकीर जानता है। अगर हम खुदा से जुड़े हैं तो पैसे को हम हकीर जानेंगे, ये क्वालिफिकेशन है अगर हम खुदा के साथ जुड़े तो। और अगर हम पैसे के साथ जुड़े हैं
तो खुदा को भी हम हकीर जानते हैं और उसके साथ हमारा इतना मिलान जुलान नहीं होता, क्योंकि हमने कुछ डिसीजन लिया है। तो पैसा बुरी बात नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। पैसा आपके पीछे आने वाली चीज़ है, ना कि आपको उसके पीछे जाने की चीज़ है। पैसा आप तक पहुंचेगा, कितने बिलीव करते हैं ऐसा होता है? आपके पास पैसा पहुंचेगा, आपकी ज़रूरतों के लिए पैसा पहुंचेगा, खुदा की सप्लाई आप तक पहुंचेगी। खुदा आपकी हर ज़रूरतों को पूरा करना जानता है, पर इसके लिए हमें फोकस खुदा पे करना पड़ेगा। Seek ye first the kingdom of God and his righteousness and all these things shall be added unto you। तुम्हारे साथ जुड़ती चली जाएंगी सारी चीज़ें। क्यों? तुमने खुदा को मास्टर बनाया लाइफ का। और इसी वजह से आज बहुत से लोग दुनिया में फंस के चले गए, क्योंकि दुनिया में 3 चीज़ें पाई जाती हैं। पहला यूहन्ना 2:16 में लिखा हुआ है, फॉर ऑल दैट इज इन द वर्ल्ड द लस्ट ऑफ द फ्लैश, द लस्ट ऑफ द आइज एंड द प्राइड ऑफ लाइफ इज नॉट ऑफ द फादर बट इट इज ऑफ द वर्ल्ड। ये सब चीज़ें दुनिया की चीज़ें हैं, आंखों की, शरीर की जो लस्ट है, ये जिंदगी शेखी जो है, ये खुदा की तरफ से नहीं, शैतान की तरफ से। और इसके लिए शैतान कहता है पैसा चाहिए तुम्हें, यू नीड मनी टू फुलफिल द डिजायर ऑफ योर फ्लैश, डिजायर ऑफ योर आइस एंड प्राइड ऑफ लाइफ के लिए तुम्हारी BMW वाली गाड़ी होनी चाहिए। तुम टोयोटा से काम नहीं चलाओगे, तुम ऐसे वैसे नहीं हो। तुम्हारा घर 3 रूम बेडरूम ना 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 ना, एटलीस्ट 10 बेडरूम वाला होना चाहिए। लोग कितने? 3 ही हो। साथ में क्या करोगे? दिखाने के लिए। जब लोग आएंगे पार्टी में दिखाना नहीं है क्या? 7 बेडरूम और एक्स्ट्रा तुम्हारे पास। शेखी। ये सब इच्छाएं इंसान की खुदा से दूर ले जाती हैं, और इंसान जिंदगी भर कमाता रहता है इन्हीं को बिल पे करने में। और एक दिन होता है हिसाब किताब, फिर भाई साहब फ्यूनरल में ले जाते हैं और उनका फ्यूनरल भी बन जाता है। इट्स फिनिश्ड। हुआ क्या? लाइफ डिस्ट्रॉयड हो गई। क्यों? कारण क्या था? इंसान ने पैसे के पीछे भागना शुरू कर दिया। अजीजों, या तो खुदा है या फिर पैसा है। किसके साथ अटैच्ड होगे और किसको हेट करोगे, ये आपके ऊपर चॉइस है। प्रेज़ लॉर्ड। मैं आपको से बता रहा हूँ, पैसे की ज़रूरत है, पर आपको बताना चाहता हूँ, खुदा कहता है मैं तुम्हें सप्लाई कर, आई विल सप्लाई ऑल योर नीड्स। बोले नीड्स। 2 चीज़ें, वांट्स है और नीड है। आपकी नीड, कार आपकी नीड है, और आपको नहीं मुझे तो हेलीकॉप्टर चाहिए, ये आपकी वांट्स है। दिस इज नॉट योर नीड। कई दफ़ा इंसान नीड पर नहीं, वांट्स पर अपनी लाइफ जीता है। यही उसकी लाइफ की प्रॉब्लम है। वैसे से वो खुदा से दूर हो जाता है। इसे लिखा है, रुपयों का जो लोभ है, लेकिन जो दौलत में होना चाहते हैं वो ऐसी आजमाइश और फंदे में, बहुत सी ऐसी बेहुदा नुकसान पहुंचाने वाली ख्वाहिशों में फंसते हैं जो आदमियों को तबाही और हलाकत के दरिया में गर्क करती है। क्योंकि रुपये की मोहब्बत हर किस्म की बुराई की एक जड़ है, जिसकी आरजू में बाज ने ईमान से गुमराह होकर अपने दिलों को तरह तरह के गमों से छलनी कर लिया। 1 टिमोथी 6:9-10 में पढ़ा भी। तो ये चीज़ें इंसान को गुमराह कर रही हैं, ईमान से भटका रही हैं, खुदा के से दूर लेके जा रही हैं। क्या चीज़ें? लव ऑफ मनी। तो आज हम सबको अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट करने की ज़रूरत है। अपने खर्चे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को सीमित करने की ज़रूरत है, ताकि आप ऐसे ट्रैप में ना फंसे। और आपको अपने बच्चों में भी ये चीज़ें इम्पार्ट करने की ज़रूरत है। हालेलुया। एक आयत में आखिर पढ़वाऊंगा, इब्रानियों 10 chapter 16-21। इब्रू 10 chapter 16-21। ये हमारा फाइनल एड्रेस चेंज होने वाला प्लान खुदा ने बनाया। सुनिए बड़े गौर से। मैंने आपको बताया, तूने खुदा को अपना मस्कन बना लिया है।
इसलिए तेरे घर के अंदर ये मुसीबतें नहीं आएंगी। आज न्यू टेस्टमेंट में खुदा ने घर कैसा बनाया है और हमारा एड्रेस ये वाला होना चाहिए। हालेलुया। दिस इज माय फाइनल वर्ड, ध्यान से सुनेगा। 16 से पढ़ रहा हूँ, हिब्रू 10:16-21। खुदावंद फरमाता है, जो अहद मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वो ये है कि मैं अपनी कानून उनके दिलों पर लिखूंगा। खुदा कहता है तुम्हारे दिलों पर मैं कानून को लिखूंगा और उनके जहन में डालूंगा। फिर वो यह कहता है कि उनके गुनाहों और बेदीनों को फिर कभी याद ना करूंगा। और जब इनकी मुआफ़ी हो गई है, बोलिए इनकी मुआफ़ी हो गई है। कितनों यीशु मसीह के लहू से, उसके खून से धुला हुआ जीवन आपने अनुभव किया है। यू ऑलरेडी फॉरगिवन। हालेलुया। आपकी गुनाह माफ़ हो गए हैं और लिखा हुआ है क्योंकि इनकी मुआफ़ी हो गई है और तो फिर गुनाह की कुर्बानी नहीं रही। बस ऐ भाइयों, चूँकि हमें यीशु के खून के सबब से उस नई और जिंदा राह की अपने राह जो उसने अपने जिस्म से होकर हमारे वास्ते मखसूस की है, और चूँकि हमारा ऐसा बड़ा कायन है जो खुदा के घर का मुख्तार है, यानी कि उसने जिस्म से होकर हमारे लिए रास्ता तैयार किया है। और जो ये ड्वेलिंग प्लेस है, यह है खुदावन के उस पर्दे में से निकलकर, उस जिस्म के पर्दे में से निकलकर, उस कर्टन से निकलकर हम मसीह में जब रहने लग जाते हैं, यही हमारा ड्वेलिंग प्लेस है। हम यीशु के लहू से धुलने के बाद, जब प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से, उसकी दया से, उसके फजल से जब उसके अंदर हम ग्रो करते हैं, उसी में रहना चाहिए। मसीह से जुदा होकर हम कुछ नहीं कर सकते, हमें मसीह में ही। इसलिए अगर आपका मेरा एक्सपीरियंस है कि हम खुदा उनके खून से धुल चुके हैं, तो हम उसके पर्दे में दाखिल हो चुके हैं और वहीं पर रहने की ज़रूरत है, उससे बाहर नहीं आना। क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए वही हमेशा के लिए खुदा का घर बनाया है। वी आर इन टू क्राइस्ट, वी आर इन क्राइस्ट। मसीह में हम दाखिल होने के वसीले से उस घर में सौंपे गए हैं। तो अजीज़ों, मैं चाहता हूँ आज हम सब खुदा के घर की अहमियत को समझें। खुदा ने मुझे और आपको खुदा की हुजूरी में रहने के लिए बनाया है। खुदा की हुजूरी से बाहर जाकर हम बर्बाद हो जाते हैं। खुदा चाहता है मेरा आप उसके घर में रहें, हमारा पूरा ख़ानदान खुदा में घर में रहे और खुदा की खिदमत हम सब मिलकर करते चले जाएं और हमारी ज़िंदगियां उस पर्दे में दाखिल होती रहें जो उसने हमारे लिए अपने शरीर में होकर तैयार किया है। आइए अब दुआ करें। लेट्स प्रे। थैंक यू जीसस। हमारा पता परमेश्वर की हुजूरी है, उससे हम जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। आज हमारी ज़िंदगियां खुदा की हुजूरी में हैं। मैं चाहता हूँ जितने भी लोग यहाँ पर हैं, जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, आप सब अपनी ज़िंदगी में अपने डिसीजन को बनाएं, क्योंकि तूने खुदा को अपना मस्कन बनाया है। आज से हम अगर खुदा के साथ में कमिटमेंट करें कि मेरा मस्कन आए खुदा तेरी हुजूरी रहेगा, मैं कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करूँगा जिससे तेरे हुजूरी से चला जाऊँ। आज अगर आप चाहते हैं मैं आपकी दुआ करूं, तो अपने राइट हैंड को उठा सकते हैं। आई विल प्रे फॉर यू। खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू, 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 गॉड ब्लेस यू। मैंने अपने हाथ को खड़ा किया है। वी नीड द प्रेजेंस ऑफ गॉड। उसके बगैर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। दुनिया की चीज़ें ये सब रह जाएंगी। एक ही चीज़ जो आपके साथ जाएगी वो है प्रेजेंस ऑफ गॉड। उसकी हुजूरी में हमेशा हमेशा हम लोग कायम रहेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदा हम तेरे शुक्रगुज़ार हैं, तू हमारा ज़िंदा खुदा है। तेरी हुजूरी ही हमारे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। तेरी हुजूरी से जुदा होकर खुदा कभी कोई इंसान तरक्की नहीं कर पाया। हाँ खुदा, तूने हमें सिखाया है कि जो हक ताला के पर्दे में रहता है वो कादर मुतलक के साए में सकूनत करता है। क्योंकि तूने खुदा को अपना मस्कन बना लिया है, इसलिए कोई भी वबा तेरे डेरे में घुस नहीं पाएगी। मैं फरिश्तों को हुक्म दूंगा कि तू जहां कहीं जाए तेरी रक्षा करे।
खुदावंद हम तेरे शुक्रगुज़ार हैं उस बेशकीमती वायदों के लिए जो तूने अपनी हुजूरी में रखने के लिए हमें लिए जोड़े हैं। हमें तौफीक दे खुदावंद, दुनिया की कोई भी चीज़ हमें तेरे हुजूरी से दूर ना करने पाए, कोई भी लालच दूर ना करने पाए, कोई भी बिहेवियर, कोई भी रेबेलियन नेचर, कोई भी इंडिपेंडेंट नेचर जो हमें खुदा अपने आप पर भरोसा करना सिखाता है, उससे हम बचें। खुदा मसीह हमें तौफीक दे खुदा, पैसे के लालच में ना जाएं। तू ही हमारा मास्टर है, तू ही हमारा लॉर्ड है। हमें तौफीक दे खुदा उनके हम तेरी लॉर्डशिप में चलें, और तू ही हमारा वो पर्दा है जिसमें तूने हमें रहने के लिए बनाया है। खुदा हम तेरे शुक्रगुज़ार हैं। दुआ करते सभी लोगों के लिए खुदा जिन्होंने अपने हाथों को उठाया है, सब पर आपका बड़ा फजल हो, सब तुझे में बने रहें, तुझी में रहें खुदा मसीह, और यही हमारा रहने की जगह बन जाए हमेशा हमेशा के लिए। सारी इज्जत सारा जलाल खुदा तुझे देते हैं। खुदा यीशु मसीह को दूर से जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। तेरी शीरीन आवाज मैं सुनता हूँ खुदा, बुलाती पास उस चश्मे के, सलीब से जो बहा। आइए सब खड़े होकर उसकी महिमा गाएंगे। आता हूँ मसीह, आता तेरे पास, धोके साफ कर चश्मे के, जो बहता क्रूस से खास। Make God the dwelling place of your life. For he that dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. प्यारे खुदावंद, हम दुआ करते हैं कि हमारा पता हमारा खुदा हो, उसकी बातें हो, उसके ख्याल हो। प्यारे खुदावंद, अपने जिंदगी की उन बातों से हम तौबा करते हैं और तेरे पास आते हैं। तूने आज हमें फिर याद दिलाया, अगर कोई मेरी आवाज सुने और अपने दरवाजे को खोले, मैं उसके अंदर आऊंगा और उसके साथ संगति करूंगा। प्यारे खुदावंद, तू हमारे जिंदगियों में नए काम को कर। तहे दिल से हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरे जिंदा कलाम के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। हम पादरी साहब के लिए, उनके खिदमत के लिए तेरा शुक्र करते हैं। हम दुआ करते हैं प्यारे खुदावंद, किंग्सवे कैंप नई दिल्ली की कलीसिया पर तो अपने बरकत के हाथ को रख, और तेरे बंदे की खिदमत जो दिल्ली में है और सारी दुनिया में है, उस पर तो बड़ी बरकत दे। प्यारे खुदावंद, उनके खानदान के लिए दुआ करते हैं, उनके वाइफ के लिए दुआ करते हैं, उनके दोनों बेटों के लिए, उनके बहुओं के लिए, बच्चों के लिए। और प्यारे खुदावंद, हम तेरी बरकत उन पर चाहते हैं। प्यारे खुदावंद, तूने हमेशा अपने हजूरी में सलामत रख। प्यारे खुदावंद, इतने लोग आज तेरे कलाम को यहाँ पर सुन रहे हैं और बाद में भी सुनेंगे, ऑनलाइन सुनेंगे। प्यारे खुदावंद, हम दुआ करते तेरा कलाम हर एक की जिंदगी पर असर करे। हम शुक्रगुजारी के साथ इस दुआ को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती जमीन पर हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस तरह अपने कसूर वालों को हमने माफ किया है, तू भी हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश में ना आने दे, बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत, जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का वो फजल जो हम में से हर एक के लिए काफ़ी है,
आसमानी बाप का ना बदलने वाला प्यार, पाकरू की हजूरी और रिफाकत हम में से हर एक के ऊपर और मसीह यीशु से मोहब्बत रखने वाले हर एक जन पर अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, वैसे ही विश्वासी मन यीशु बिन मुर्दा